Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Welcome to lecture number 7 of differential equation. Let me first give you the review of what we have studied in the last lecture. In the last lecture, we studied exact differential equation and exact differentials and the method how to solve the exact differential equation. Any differential equation is called exact differential equation if and only if it satisfies the property of exact differential. dy by dx is equal to f of xy is the first order differential equation. Is said to be an exact differential equation if, after writing it in the form m dx and dy equals to 0, if it satisfies this property, partial m by partial y is equals to partial n by partial x, then the equation is called the exact differential equation. If it satisfies this property, it means that m is equals to partial f by partial x, n is equals to partial f by partial y. This is the basic things which we call as exact differential equation. Now let us revise the method how to solve this exact differential equation. If you are having any differential equation, the first method is you need to verify that it is an exact differential equation, and that method is partial n by partial y must be equals to partial n by partial x. Once they are equal, that means the differential equation given in the problem is exact differential equation. Then m could be written as partial f by partial x and could be written as partial f by partial y. I'm not going into the detail of how to write this partial f by partial x equals to m, partial f by partial y equals to n, as I have already explained it in the last lecture. After writing it, you have two options: transform from partial f by partial x to partial f by partial y, or from partial f by partial y to partial f by partial x, as per your choice, depending on the easiness of the problem. Let me first solve from partial f by partial x. Integrating, first I have to remove this differential option. Integrating with respect to x, it will give me f by using the law of fundamental theorem of calculus, and this will be integral of m. And I have explained in the lecture that when we will integrate with respect to x, we will have a constant with respect to other variable. If you are integrating with respect to y, you will have a constant in the form of x, and if you are integrating with respect to x, you will have a constant in the form of y. Now the problem left is you need to find this constant theta phi. For that you need to use the method of uh, comparing equations. To use that method, take the derivative of f with respect to y. You will get theta prime of y and the derivative of whatever the function you have. Once you have partial f by partial y in your equation, and you already have partial f by partial y in the form of n, by comparing these two terms, you will get the value of theta prime. As I have told you that you are supposed to find theta of phi, here you have theta prime of phi, so you have to integrate with respect to y to find the exact theta of phi. Once you find theta of phi, put it in this equation, your function will be complete. This is the way how you solve the exact differential equations. Along with it, if you have initial conditions in the problem, then you have to convert this general solution into a particular solution. Now let us move toward today's problem, and that today's problem is called today we will try to learn how to find the integrating factor of any differential equation. First we will define what is integrating factor,
Then we will learn the method how to find these integrating factors. Starting with the concept of uh, motivation regarding integrating factor. सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्यों फाइंड करते हैं और उस फैक्टर का काम क्या होता है। फ्रॉम द वर्ड फैक्टर इट मीन्स कि वो एक टर्म होगी जो आप ढूंढ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड फ्रॉम योर प्रॉब्लम। वो जो टर्म आप ढूंढ रहे हैं उसका एक काम ये होगा कि इफ यू हैव एनी इक्वेशन which is not exact in nature, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस फैक्टर या उस टर्म को कहेंगे जिसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नई प्रॉब्लम बनती है, जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, वो एग्जैक्ट होती है। अगेन विद चेंज ऑफ वर्ड्स, यही बात दोबारा दोहराता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस फैक्टर को कहते हैं जो जब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता है, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। डेफिनेशन इज क्लियर। द फंक्शन u, if it exists, is called the integrating factor and it satisfies the equation due to the condition of exactness, कि वो exactness की condition को satisfy करेगा। ठीक हो गया। This is the partial differential equation and is very difficult to solve. Consequently, the determination of the integrating factor is extremely difficult except for some special cases. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना इतना आसान काम नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं ताकि हमें वो फैक्टर ट्रेस हो जाए जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम दे सकें और डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। फिर आगे उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है, कि मेथड से सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन, पहले जो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ एन एग्जांपल। इसमें उन्होंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इक्वेशन is 1 by x square plus y square is an integrating factor of for the equation x square plus y square minus x dx minus y dy equals to 0, and then solve the equation। तो फर्स्ट आप पहले वेरीफाई करें कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फिर अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, जो भी मेथड आप अप्लाई करते हैं। पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है का मतलब ये होगा कि पार्शियल m को पार्शियल y से डिफरेंशिएट किया, पार्शियल n को पार्शियल x से डिफरेंशिएट किया और दोनों का आंसर मैच नहीं करता। अगर ऐसा हो जाए then we will say that this is not an exact differential equation। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, आप इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद वो एग्जैक्ट आंसर दे दे, then this is called the integrating factor। अब हम क्या करते हैं कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। If the equation is multiplied by this, then equation becomes, equation को इससे मल्टीप्लाई किया है, स्मॉल कैलकुलेशंस की हैं, कुछ टर्म्स को कैंसिल किया है, फाइनल जो फॉर्म बनी है वो ये है। अब हम ये चेक करते हैं कि जो फाइनल फॉर्म बनी है, इज दिस एन एग्जैक्ट इक्वेशन और नॉट। m ये आ गया, न्यू m और न्यू n ये आ गया है। m के रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया, n के रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया एंड वी फाउंड द सेम रिस्पांस। इसका मतलब ये हो गया कि नाउ इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो इसे हम सिंपल उसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जैक्ट का मेथड है। इसे हम एग्जैक्ट के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेथड मैंने रिप्रेजेंट किया है, जैसे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया गया है, वो सिंपल इंटीग्रेशन की टेक्निक है। ये जो टेक्निक जहाँ पर शो की गई है ये डिफरेंट क्वेश्चंस पे डिफरेंट है, सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको फॉलो करें। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप इसी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को साथ लेकर
और एग्जैक्ट की टेक्निक को अप्लाई करें टू फाइंड द सॉल्यूशन और मेक इट श्योर कि आपका सॉल्यूशन यही आए जो यहाँ पर लिखा हुआ है. Now we will see some tricks how to find the integrating factor in any differential equation of first order. Case 1, when there exists an integrating factor u of x कि जो integrating factor होगा वो सिर्फ x के ऊपर dependent होगा, a function of x only. This happens if the expression, अगर ऐसा हो कि आप पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड एन से कर रहे हैं, और जो फंक्शन आगे आए वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है. अगर वो सिर्फ x का फंक्शन है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर u कुड बी रिप्रेजेंटेड एट दिस फॉर्म कि इन सारों का जो भी आंसर आएगा अगर वो x का फंक्शन है, f ऑफ x कह देता हूँ कि उसमें y शामिल नहीं हो रहा. अगर उसमें y शामिल नहीं हो रहा तो आप सिंपली उसे इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी f ऑफ x dfx. ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. नाउ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y देखते हैं. व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y, इफ जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ था तकरीबन ये वही एक्सप्रेशन है, ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था दैट वाज पार्शियल m बाय पार्शियल y माइनस पार्शियल n बाय पार्शियल x ओवर n. अगर ये आपका x का फंक्शन बनता है तो इसे इंटीग्रेट करेंगे. अगर ये आपका y का फंक्शन बनता है तो हम इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ y होगा. अगर ये y का फैक्टर बना तो इसे y से इंटीग्रेट करेंगे. अगर ये x का फैक्टर बना तो x से इंटीग्रेट करेंगे. थर्ड केस सेज if the given equation is homogeneous and x multiplied by m plus y multiplied by n is not equals to 0, then u is equals to, दिस इज द सिंपल फॉर्म, डायरेक्ट यू आएगा, यहाँ पर आपको इंटीग्रेट नहीं करना. मगर ये कंडीशन आपने याद रखनी है. दैट मीन्स कि आपके पास जब कभी भी कोई इक्वेशन आए, इक्वेशन अगर होमोजीनियस नेचर की हो तो आपको कहा जाए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी. If the given equation is of the form y f of xy dx plus x g of xy dy, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पर n लिखा हुआ था उसमें से x कॉमन आ जाए, यहाँ पर जो m लिखा हुआ था उसमें से y कॉमन आ जाए, और उसके बाद ये कंडीशन भी होल्ड करे तो आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. Once the integrating factor is found, we multiply the old equation by u to get a new one which is exact. Solve the exact equation and write the solution. कि एक दफ़ा किसी इक्वेशन का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी. अगर वो एग्जैक्ट बन जाती है फिर उसे एग्जैक्ट के मेथड से सॉल्व करेंगे. जो लेटेस्ट इक्वेशन होगी, जो नई बनी हुई इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करें एग्जैक्ट के मेथड से तो वो आपका सोल्यूशन होगा वही. एंड पे जाके इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद ही इस तरीके से एलिमिनेट होता है कि वो जो सोल्यूशन आता है नई फॉर्म का वो वही होता है जो ओरिजिनल फॉर्म ऊपर लिखी हुई थी. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड सम summary steps. राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म कि पहले सबसे आपने इसे इस फॉर्म में लिखना है. जो शुरू की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने की थी वो इस तरह की थी कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो डी ऑफ वाई बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई. अब ये कहते हैं कि आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई है दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एम एंड एन. एम ऊपर होगा, एन नीचे होगा. तो आप इस तरीके से अरेंज करके m को dx के साथ मल्टीप्लाई करें, n को dy के साथ मल्टीप्लाई करें, इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखें और एग्जैक्ट के तरीके से चेक करें. चेक फॉर द एग्जैक्टनेस ऑफ द इक्वेशन बाय फाइंडिंग वेदर और नॉट. इफ द इक्वेशन इज एग्जैक्ट तो फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है. इफ इट इज नॉट एग्जैक्ट देन वी विल मूव टुवर्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर.
If the equation is not exact, then evaluate this thing. ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियरली उन्होंने जुमला एक्सप्लेन ये किया है कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आप सबसे पहले ये चीज ट्राई करें। इसी फर्स्ट नंबर पे आप ट्राई करेंगे, अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स बना तो आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स ना बना, अदरवाइज इवेल्युएट। अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स ना बना तो फिर आप ये इवेल्युएट करें। ये फंक्शन ऑफ वाई बनेगा तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। In the absence of these two possibilities, better use some other technique. However, we could also try cases 3 and 4 in step 4 and 5. कि अगर आपके पास इन दोनों स्टेप्स में से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना आए तो आप देख लें कि क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर नहीं करता तो आप बेशक किसी और मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्राई करें। कहने का मतलब है फिर आप बेशक होमोजीनियस वाला टेक्निक यूज करें या सेपरेबल वेरीफाई करें। क्या पता सेपरेबल इक्वेशन हो, क्या पता ये होमोजीनियस नेचर की हो, किसी भी फॉर्म की हो सकती है। मगर वो ट्राई करने के बाद अगर वो भी नहीं बनती तो फिर आप स्टेप 3 और स्टेप 4 में जो उन्होंने डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की टेक्निक बताई थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो टेक्निक ये थी कि आप m को x से मल्टीप्लाई करें, n को y से मल्टीप्लाई करें। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इफ यू कैन गेट y कॉमन हेयर, यू कैन गेट x कॉमन हेयर, फिर आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये आपके पास सिचुएशन बन जाती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। आगे की बात वही है, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए, मल्टीप्लाई विद द इक्वेशन, द न्यू इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के मेथड से सब सॉल्व करें। सॉल्व द न्यू इक्वेशन यूजिंग स्टेप डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, dy by dx is equals to minus 3xy plus y square x square plus xy। सबसे पहले इसे अरेंज करते हैं m और n की फॉर्म में, where जो the function written with x is called m and the function with y is called n। सबसे पहले एग्जैक्ट वेरीफाई करेंगे। जो x के साथ लिखा है उसका डेरिवेटिव हमने किससे लेना है, y से, और जो y के साथ लिखा है उसका डेरिवेटिव हम लेंगे x से। If it is equal, then the equation is exact, and if it is not equal, it is not exact. If it is not exact, we will move towards the integrating factor। क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेप 2 कहता है they are not equal, so not exact। If it is not exact, then what we have to do is to find the integrating factor। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको कहा गया था कि आपके पास टोटल 4 मेथड्स हैं। आप बेशक ये प्रॉपर फॉर्म में करते हैं या रफ फॉर्म में जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एग्जैक्ट लिख लेते हैं। एक ये था, दूसरा था पार्शियल n बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल y बाय m। अगर आप ये टेक्निक यूज करते हैं तो आपका आंसर सिर्फ x की फॉर्म में आता है, तो बस इनफ, पहली काफी है। अगर आप ये टेक्निक यूज करते हैं आपका आंसर y में आता है तो आप बेशक ये यूज कर लें। अगर ये दोनों से काम नहीं बनता फिर आप 3 और 4 के दो मेथड थे, 3 स्टेप 3 और केस 3 केस 4 था, वो अडॉप्ट कर लें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट आ सकता है। अगर आप माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी एक मेथड कहते हैं केस 4 से आ रहा है तो केस 4 डायरेक्ट अप्लाई कर दें। लाजमी नहीं कि 1 2 3 पहले अप्लाई करें, वो रिजेक्ट करें फिर 4 पे आए, नहीं। एज पर चॉइस जो डायरेक्ट अप्लाई होता है आप डायरेक्ट ट्रेस करें और डायरेक्ट लिखें। स्टेप 3, यहाँ पर मैंने ये वाली टेक्निक यूज की और मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स भी ऐसा ही आ गया जैसा आना चाहिए था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लूँगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा उसको एक्सपोनेंट की पावर में लिख के इंटीग्रेट कर लें। ये फॉर्म, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऊपर गिवन थी उसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी 3xy प्लस वाई स्क्वेयर, तो x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स क्यूब बन गया, एक्स स्क्वेयर बन गया।
हर जगह पे x एक एक इंक्रीज हो गया। अब जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, मेक इट श्योर कि इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप सिंपल पार्शियल m बाय पार्शियल x लें। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। प्लस वाई स्क्वेयर, ये पार्शियल m बाय पार्शियल x है। और इसी तरह आप पार्शियल m बाय पार्शियल y लेना था। फर्स्ट वाली को पार्शियल m बाय पार्शियल y लेना था। अगर डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू y, यू विल गेट 3x स्क्वेयर प्लस 2xy स्क्वेयर। इस तरह पार्शियल नॉट विद दिस स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर नहीं आएगा, प्लस 2xy। पार्शियल एन में पार्शियल एक्स करते हैं तो 3x स्क्वेयर प्लस 2xy, सो बोथ आर सेम। सो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो फैक्टर आपने फाइंड किया है, इट इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वेरीफाई करने के बाद अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। रिमेनिंग पार्ट इज कि आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड सीखना नहीं है, वो लास्ट लेक्चर का पार्ट था। सो मैं ये काम आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग इसे खुद प्रैक्टिस करें और देख लें कि जो ये स्टेप्स हो रहे हैं इनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आती हो। ऑल द सॉल्यूशंस आर गिवन बाय द इम्प्लिसिट इक्वेशन। ठीक हो गया। इट इज ऑफ द सेम टाइप जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं सर। नो दैट कैन बी वेरीफाइड दैट द फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन बना है इज अनदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द सेम इक्वेशन एज न्यू इक्वेशन इज। यहाँ पर एक और बात ये बताई गई है कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आप एक टाइप जो आपने फाइंड आउट किया दैट वाज x। यहाँ पर एक और इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है दैट इज 1/2xy 2x प्लस वाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप डिफरेंट स्टोन सॉल्व कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टोन डिफरेंट टेक्निक या डिफरेंट केस से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि डिफरेंट स्टोन्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंट आ जाए और वो एग्जैक्ट भी बना दे इक्वेशन को और वो सोल्यूशन भी ले आए। अप्रॉक्सीमेटली सोल्यूशन सेम होगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर ये कोई कंडीशन नहीं है कि सबका एक जैसा ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इट कुड बी डिफरेंट। Now let us move toward one more example. Differential equation is given. सबसे पहली बात एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस अगर नहीं होती तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ जाएंगे। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नहीं कि आएगा नहीं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करने को कहा जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फाइंड ही नहीं कर सकते। आप फाइंड कर सकते हैं मगर उसकी वैल्यू 1 आएगी, वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अब रहेगी बात इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के 4 केसेस आपने पढ़े हैं, उन 4 में से कोई एक आपको आंसर देगा। पहला केस था कि एम वाई माइनस एन एक्स बाई एन। एम वाई का मतलब है पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय एन। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है एक्सपोनेंट से इंटीग्रेट करने के बाद। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में चली गई, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। ये अब आप वेरीफाई करेंगे। आपने ये वेरीफाई करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही आया है या गलत आया है। उसके लिए एक स्टेप यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मैं रिकमेंड करूँगा आप करें, वो ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई इक्वेशन आई है उसे एग्जैक्ट हर सूरत होना चाहिए। अगर आप इसे y से इंटीग्रेट करें तो ये सिंपल बन जाता है 4xy, और पार्शियल n बाय पार्शियल x अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है 4xy। अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टेप्स हैं यहाँ तक कंफर्म हो चुका है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अब आगे की बात आती है कि एग्जैक्ट के मेथड से इसे आपने सॉल्व करना है। तो एग्जैक्ट की टेक्निक अप्लाई करेंगे।
यहाँ पर एग्जैक्टली टेक्निक एक्सप्लेन नहीं की गई, वो आप लोगों ने खुद अप्लाई करनी है और देखना है कि सेम आता है या नहीं। सेम इज द केस, देयर आर सम अदर एग्जांपल्स। dx जिसमें m की वैल्यू 1 है, dy के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है इट इज n, पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई कैलकुलेट किया 0, पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स किया तो 1 बाई वाई नॉट इक्वल्स टू 0, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन। इफ इट इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन तो पहला केस ये था कि m ऑफ y माइनस n ऑफ x बाय n, अगर ये फंक्शन ऑफ x आता है तो मसला ख़त्म, हम इंटीग्रेट कर लेंगे। m ऑफ y आपके पास 0 है, n ऑफ x आपके पास 1 बाय y है और n आपके पास x माइनस y साइन y बाय y आता है। इन नेक्स्ट स्टेप y कैंसिल कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, तो ये बनता है माइनस y साइन ऑफ y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टर्म आपको फंक्शन ऑफ x देती तो आप सिंपल इंटीग्रेट कर लेते, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इसने फंक्शन ऑफ x नहीं दिया, इसने हमें एक कम्युलेटिव फंक्शन दिया है, इसने वो फंक्शन दिया है जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, जो दोनों वेरिएबल्स में जिसमें शामिल है, तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाल सकते। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या था कि n ऑफ x माइनस m ऑफ y बाय m, इसको अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास अगर फंक्शन ऑफ y आ जाता है तो हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। ये केस 1 था, ये केस 2 है। केस 2 से हमने सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड आउट कर लिया तो इट इज़ u ऑफ y एक्सपोनेंट्स के, ये जो ई एक्स पी लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि u इज इक्वल्स टू e पावर y dy, सॉरी 1 ओवर y dy। इंटीग्रेट करेंगे, e पावर 1 ओवर y का इंटीग्रल नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आ गया, आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो भी न्यू फाइनल फॉर्म बनेगी दैट विल बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें और अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएं, वी विल गेट द फाइनल रिस्पॉन्स। सॉल्विंग वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 4 मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 5, मैंने केस नंबर 3 एंड 4 में से एक केस ऐसा किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास जो m लिखा हुआ है दैट मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ dx है, और जो n लिखा है जिसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ dy, अगर n में से x कॉमन आ जाए और m में से y कॉमन आ जाए तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। बात वही है, अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ जाएंगे, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, चाहे y कॉमन आता है चाहे x कॉमन आता है। So first step is you need to verify is this an exact equation or not। उसके लिए आप क्या करते हैं, partial m by partial y must not be equals to partial n by partial x। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये वो फॉर्म थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अगर आपके पास dx के साथ y कॉमन आ जाए और dy के साथ x कॉमन आ जाए, then we can find the integrating factor with some other method। m is equals to this function, n is equals to this function, x of m minus y of n, if it is not equals to 0 then this term will be named as the integrating factor of the differential equation। u is equals to 1 by 3x cube y cube, u is equals to 1 by 3x cube y cube, where the technique used is u equals to 1 by xm minus yn।
अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, इज दिस द ओरिजिनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर और नॉट? क्या आपने ठीक कैलकुलेट किया है या नहीं ठीक कैलकुलेट किया? क्या वाकई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है? ये वेरीफाई करने का एक ही मेथड है और कोई मेथड नहीं है कि आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें, जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को exact differential equation में convert कर दे, then we will say that this is the integrating factor of the respective differential equation. जब ये differential equation में convert कर दे, फिर उसके बाद therefore the solution of the given differential equations are given by, here is the solution, then you have to just integrate or follow the technique of exact differential equation, तो आपका solution आ जाएगा। इस एग्जाम्पल के बाद there are some practice questions जिसके अंदर तक ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, मगर मैं बात को कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, अब फिर एक दफ़ा और दोहराता हूँ, वो ये कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस सूरत कैलकुलेट करते हैं अगर आपकी इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो। तो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो और आपको बाउंड किया जाए कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें, तो आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें, ऑटोमेटिकली दैट विल बी इक्वल्स टू 1 और कांस्टेंट आएगा। वो इस तरह का नंबर आएगा कि जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं ला रही होगी, उसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन हो तो इस तरह का काम करते हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कंफ्यूजन हुई, तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन सेशन में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।